And for all the updates pouring in on the Maharashtra political potboiler, I'm handing across now to Poulami Saha, who's reporting live from Guwahati. Poulami, good morning. It's over to you. Good morning, Akshata, and thank you for that. Viewers, we're starting out right now with some breaking news that's coming in. Shiv Sena Member of Parliament Sanjay Raut has just tweeted the ugly war of words between the Uddhav Thackeray and the Shinde camp continues. Sanjay Raut again has in fact fired a BAP salvo at rebels again. That's the latest. Sanjay Raut has just tweeted out a video of rebel MLA Gulabrao Patil, who is inside Radisson Hotel, and he said, "Are we the ones only who are using the BAP language?" My colleague Paras Dama is in fact joining me live from Mumbai on this. Paras, good morning to you. What has Sanjay Raut tweeted and what exactly does he intend to say with this salvo that he's firing at the Shinde camp? Paras. Good morning, Poulami. This is the war of word which is happening from last few days. Sanjay Raut is targeting Eknath Shinde camp on BAP thing. So a few days ago, he has just said that use your father name, don't take votes on Bala Saheb's name. So this has now gone into another tangent, and Sanjay Raut is firing on it. Sanjay Raut is tweeting, Sanjay Raut is writing some editorial about this BAP thing, and some few moments ago Sanjay Raut had also tweeted regarding Kesarkar that बाप बदलने की भाषा कौन कर रहा है. देखिए श्रीमान केसरकर, थोड़ा समय दीजिए. पहाड़, पेड़ और प्रकृति के विवेक मत गवाइए, आप उन्हें पहचानते हैं. जय महाराष्ट्र. So directly now Sanjay Raut has targeted Kesarkar. Kesarkar is the MLA who is in Guwahati right now, but now the situation for Shiv Sena and Mahavikas Aghadi Sarkar is very dangerous situation, because they are losing numbers very quickly. We had seen 39 MLAs who is in Guwahati right now, and yesterday Udar Sa Paras, because you're just mentioning, Paras, I'll have to cut you short over there because you're just mentioning Deepak Kesarkar. Let's listen into Deepak Kesarkar speaking to our sister channel Aaj Tak right now. की मांग की आज और विधायक जुड़ सकते हैं आपके खेमे के साथ? हो सकते हैं, एक या दो आ सकते हैं और दो. तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी अब आपकी? कल तो हम लोग 51 बने थे, अब 53 बन जाएंगे. 53 हो जाएंगे और आज. हमारे, और अगर हमारे दो आ जाए तो फिर हमारा जो गुट है, मतलब जिसमें हम लोग बोलते कि पार्लियामेंट्री पार्टी, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी की संख्या ये 39 + 2 41 हो जाएगी. तो अब नई पार्टी को लेकर मंथन किया जा रहा है. किस तरफ अब आपकी रणनीति है, आपकी बागी विधायकों की? क्या कुछ आपके खेमे में इस वक्त विचार विमर्श हो रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि हम लोग शिवसेना में ही है, और हमारा जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन रहेगा. हम आज भी शिवसेना के सदस्य हैं और शिवसेना के ही सदस्य रहेंगे. हमारी जो निष्ठा है वो बाला साहब के ऊपर है, उद्धव साहब के ऊपर है. वहाँ पे ये राउत नाम के जो प्रवक्ता है वो लोगों को भड़काने के लिए उनको मिसगाइड कर रहे हैं. हम लोग बाला साहब के विचार पे चलेंगे. ऐसी कोई भी हमारी रणनीति नहीं है कि ओरिजिनल पार्टी हम लोग हाईजैक करें, बिल्कुल नहीं है. ओरिजिनल पार्टी डिफरेंट रहती है, और जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है उसका एक प्रोसीजर है, और उस हिसाब से जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी है उसके बारे में हमने कहा है कि शिंदे साहब हमारे नेता है, और वो जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय हमारे लिए फाइनल होगा. तो किसी भी मर्जर की कोई भी संभावना नहीं है. ये मर्जर की बात जो कह रहे हैं वो वहाँ पे शिवसैनिकों को भड़काने के लिए ये वो बात कर रहे हैं. तो फिर ये लड़ाई बाप तक क्यों आ गई है? क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है दीपक जी? देखिए, ये जो संजय जी है वो इतने इनडिसेंट है, मतलब ऐसा प्रवक्ता भगवान किसी को भी न दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ. और देखिए, ये बोलते हैं कि आप अनेक पापों के हैं. इसका मतलब क्या होता है? आप किसी औरत पे एक इल्जाम लगा रहे हैं जो हमारी आदरणीय माता जी है. अगर ये चीज वो बाला साहब के रहते बोलते तो बाला साहब 1 मिनट में उनको सामना से और मातोश्री से निकाल देते. उद्धव जी ये क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा सवाल है. और हमें अगर वो मुर्दा बताते हैं,
हमारी पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वोटों से वो चुन के आए हैं। हम 41 लोगों ने उनको मतदान किया था और उस मतदान पे वो जीत के आए हुए हैं। तो ये जब शब्द वो बोलते हैं तो उनको वो मॉरल, अगर वो सचमुच अपने मॉरल को समझते हैं या तो उनके पास ये मॉरल है। वो तो आपके ही मॉरल्स पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 50-50 करोड़ में बिक गए हैं आप लोग। लेट मी कंप्लीट मैडम। ठीक है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने राज्यसभा के मेंबरशिप का और उनको फिर से लड़ना चाहिए पवार साहब का और कांग्रेस की सपोर्ट करके। वो उनके पास ज्यादा है, वो शिवसेना के कम है और ज्यादा वो एनसीपी के हैं, तो उनको उनका सपोर्ट लेके लड़ना चाहिए। और 14-15 लोग वहाँ पे हैं, उनका भी वोट लीजिए, अब फिर से जीत के आइए, फिर हमारे पास बारे में कुछ भी बोलिए। और अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 50 करोड़ रुपया लेके बिक चुके हैं, तो हमने 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर लेते तो हम लोग मर्ज करने की बात करते, हम ओरिजिनल शिवसेना में होने की बात क्यों करते? कह रहे हैं आपने वोटर्स के साथ धोखाधड़ी करी है और वाई कैटेगरी सुरक्षा अंधेर कर दी है। अगर धोखाधड़ी हो गई है तो वो शिवसेना की तरफ से हो गई थी जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था। कि लोगों ने मत किसको दिया था? शिवसेना और बीजेपी को दिया था। फिर भी बीजेपी ने जो आश्वासन दिए थे हमारे पक्ष प्रमुख को, उन्होंने वो नहीं दिवाए, इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया हम उसके साथ रहे। फिर भी 6 महीने के बाद हमने बोला कि अभी आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अभी इनको छोड़ दीजिए। ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हम लोग बार बार इनको बोल रहे हैं कि ये कीजिए। हमने ऐसे एक दिन में ये नहीं किया, ये बगावत नहीं की और ये बगावत भी नहीं है, हम उनके साथ ही है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन ये है कि हमें कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना है। उनको लोग हरा चुके थे, वो हमारे कारण सत्ता में आए हैं। असली में लोगों ने सेना और बीजेपी अलायंस को वोटिंग किया था। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं कि हमने लोगों के साथ ये किया? हमने लोगों के साथ बिल्कुल धोखा नहीं किया। जो मैंडेट हमको जनता ने दिया था, हम उस मैंडेट के साथ हैं। सर, आदित्य ठाकरे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद ऑफर किया गया, वो फूट फूट कर रोने लगे, उसके बाद जल्दी इतना बड़ा सियासी संकट महाराष्ट्र पर खड़ा कर दिया उन्होंने। अरे मैडम, ये बात तो इसलिए गलत है कि वो कभी सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। सीएम का पद ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक तो आइडियोलॉजी का है फर्स्ट। सेकंड मुद्दा है वो एनसीपी हमको खत्म करना चाहती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और अगला एमएलए वो डिक्लेयर करते हैं। एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहां पे नया एमपी डिक्लेयर करते हैं। किसने उनको हक दिया? महाराष्ट्र की जनता उनको हरा चुकी थी। फिर जिस पार्टी के दम पे आप सत्ता में आ गए, उस पार्टी को ही खत्म करने की आप साजिश कर रहे हैं। और ये देखते हुए भी अगर कुछ भी कदम हमारे पक्ष प्रमुख नहीं लेते हैं तो ये हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि आप अभी भी ये कदम लीजिए और आपके नेतृत्व में एक नई आघाड़ी बनाइए। आज भी हमारा उनको अपील है कि आपके नेतृत्व में ये कीजिए और ये करना आवश्यक है, ये जरूरी है। आखिरी सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आएगा, आपको उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि हमारी जो ये है, हम सच है तो सच हमेशा जीतता है और हम लोग जीतेंगे। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बागी शिवसेना के विधायक दीपक केसरकर जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट